Good morning, students. In last lecture, we have studied about the tissue, the first part of tissue. It means tissues are the group of cells that perform some specific function. They will specify after differentiation. They will specify cells after differentiation. Differentiation means they will transform to the differentiated cells or they will transform to the permanent cells as well. Living cells will transform into नॉन लिविंग सेल्स. जैसा हम लोग कल पढ़ रहे थे कि जो सेल्स हमारी ग्रोइंग सेल्स थे इन प्लांट्स, दे विल ट्रांसफॉर्म इनटू स्पेसिफिक सेल्स एंड मेक्स द ग्रुप्स, और दीज ग्रुप्स आर नोन एज टिश्यू. तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो प्लांट सेल्स थे उनमें जो टिश्यू बनेंगे वो दो टाइप के होंगे. फर्स्ट वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेम इट्स अ वर्ड. मेरिस्टेम का मीनिंग ऐसे एरियाज दैट will grows in the plant, the regions where growth occurs in the plants, or these are localized in the position. These are localized in the position. As you know, meristematic cells are of three types. First one is apical meristem, that will increase the primary growth, that will increase the primary growth, or longitudinal growth as we said. क्या था ये? Longitudinal growth. It's also known as a primary growth. It will increase the length of the branches, it will increase the length of plant from the upper parts, it increase the length of the apical part of roots. The question is, अगर मान लीजिए मैंने क्या करा, रूट अपेक्स को क्या किया है, हटा दिया. कोई भी प्लांट है उसकी रूट अपेक्स को मैंने क्या कर दिया, एपिकल पार्ट को काट दिया, तो द एपिकल ग्रोथ ऑफ दैट रूट विल बी स्टॉप. ओके, तो आफ्टर दैट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो तीन टाइप थे वो हम लोगों ने कल देख लिए थे. नाउ विल डिस्कस सिंपल परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट मैंने कल आपको बताया था. सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो आपके पास तीन टाइप के हैं. फर्स्ट वन इज पैरेन्काइमा, सेकेंड वन इज कोलेनकाइमा एंड थर्ड वन इज स्क्लेरेनकाइमा. दीज थ्री टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज फाउंड इन द प्लांट बॉडी. ओके, तो पैरेन्काइमा जो सेल्स हैं that will formed by the living cells. Parenchyma जो tissue है that will form of living cells, and these cells do not have the spaces between the cells. Okay, and okay, parenchyma cells will transform into different types of cells. जो cells हैं वो तीन टाइप की यहाँ पर होगी. पहली बात तो ये कि इसको सिंपल बोला क्यों मैंने, why it is known as simple permanent, because their structure, their function and their origin is same. तीनों का जो फंक्शन है, दोनों की जो origin, तीनों की जो स्ट्रक्चर है वो सारी कैसी है, origin सहित सारी कैसी है, एक जैसी है. That's why these are known as simple permanent tissue. And simple permanent tissues are of three types. That one is, first one is parenchyma, second one is colenchyma, third one is sclerenchyma. Parenchyma, as its name says, para means होता है बिसाइड. बिसाइड का मतलब होता है इसके अलावा. एंड इनकाइमा, काइमा का मीनिंग होता है इनफिलिंग, इसके अंदर कोई चीज प्रेजेंट होगी. इट मींस इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू द मॉडिफिकेशंस. इसके भी कुछ क्या होंगे, टाइप्स होंगे. किसके? पैरेन्काइमा के भी. पैरेन्काइमा के जो टिश्यू है उसके भी डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स है. इट मींस फर्स्ट फॉर्म वी स्टडीड यस्टरडे, दैट इज क्लोरेनकाइमा. फर्स्ट वन इज क्लोरेनकाइमा. एज इट नेम सेज, Chlorenchyma is the parenchyma tissue in which chlorophyll is present. What is the parenchyma tissue in which the cells have the chloroplasts in their structure? It means they will help in the photosynthesis. वो प्लांट की किस में हेल्प करेगा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा. इसका मतलब क्या है, उसकी सेल्स कैसी है, लिविंग सेल्स है और वो क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रही है. Second one is parenchyma. Second one is parenchyma. The cells of the parenchyma tissues have some intercellular spaces. कल हम लोगों ने देखा था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था उसकी सेल्स के बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, इन सेल्स के बीच में क्या होगा, गैप होगा.
It means they have some intercellular spaces, and if these spaces are filled with air, then they will help the plants to be float in the water, to be bent in the water by the pressure, or they will help, it will help in the easy bending without breaking. ओके, तो ये एरेनकाइमा टिश्यू हो गया आपका, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है हमारा कौन सा, कॉलेनकाइमा। कोई भी प्लांट सेल है उसको इजी बेंडिंग, तोड़ने से रोकेगा और इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा कॉलेनकाइमा। व्हाई? बिकॉज कोला मीन्स अ ग्लू, एक क्या करेगा, ये ग्लू लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। एनकाइमा हम लोगों ने पढ़ा है, कॉलन एनकाइमा का मतलब इनर फिलिंग, उसकी सेल्स के बीच में क्या होगा, गैप होगा, और उस गैप के बीच में क्या होगा, क्या भरा होगा, उसके बीच में क्या होगा, कॉर्नर्स के ऊपर पेक्टिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। आई बात समझ में? उसकी जो सेल वॉल है उस सेल के ऊपर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, इसके कॉर्नर्स के ऊपर, इसके कॉर्नर्स के ऊपर पेक्टिन जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब पेक्टिन का फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या होगा, इसकी जो वॉल है दैट विल बी थिकन, वो क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। ओके, और दैट विल प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट सेल, प्लांट बॉडी। आफ्टर दिस एरेनकाइमा, थर्ड जो मॉडिफिकेशन है किसका, पेरेनकाइमा का थर्ड, वो है आपका प्रोसेनकाइमा। क्या होता है, प्रोसेनकाइमा। ये प्रोसेनकाइमा जो पेरेनकाइमा टिश्यू है उसी का मॉडिफिकेशन है, दैट विल हेल्प्स टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट सेल। ओके, ये पेरेनकाइमा जो सेल्स है ये क्या करेगी, वेस्ट प्रोडक्ट को इंगल्फ करेगी, स्टोर करेगी। ओके, दीज आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ पेरेनकाइमा। ठीक है, नाउ विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। These three simple permanent tissues have some difference according to their structure, according to their nature of cell wall, according to their cells, okay, according to their occurrence. First point we will discuss the shape of cell. First point we will discuss the shape of cell. तो shape कैसी होगी, किस shape की cells होगी, तो oval. Parenchyma cells will be maybe oval, maybe rounded or isodiametric. ओवल समझ में आया होगा, राउंडेड समझ में आया होगा, आइसोडायमेट्रिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोडायमेट्रिक? आइसोडायमेट्रिक मीन इट विल नॉट कंप्लीटली स्फेरिकल, इट इज नॉट कंप्लीटली स्फेरिकल। ओके, नाउ इन दिस द सेल्स ऑफ द कॉलेनकाइमा सेल्स आर इलोंगेटेड, इलोंगेटेड मीन्स खिंची हुई, लंबी, इलोंगेटेड, टैपरिंग एट द एंड्स। टैपरिंग एट आप लोगों ने समझा होगा कि दोनों सिरों पे क्या होगी, दोनों एंड्स पे क्या होगी, पिचक जाएगी, वो एक तरह से चपटी हो जाएगी, तो टैपरिंग एट द ends. Now sclerenchymal cells are isodiametric. Sclerenchymal cells are isodiametric, as we study. Isodiametric means not completely spherical. Okay, then elongated cells are also. Next point is nature of cells. उसकी cells कैसी है, thin walled cells in parenchyma. parenchyma की जो cells है वो living cells है, that's why they don't have any type of space and the cell wall is thin, and the cells are living cells, and the cells are living cells. Then these also helps in the different type of function, like chloroplast having, then they helps in the photosynthesis, they will provide the buoyancy to the plant body. Okay, next Collenchyma cells, as we discussed, are pectinized cells, are pectinized, pectin उनके कॉर्नर के ऊपर कलेक्ट हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, दैट्स व्हाई देयर वॉल इज थिकन। और इस टाइप की जो सेल्स होती है वो भी कैसी है, लिविंग। बट इन स्क्लेरेनकाइमल सेल्स द सेल्स आर थिक वॉल्ड एंड डेड। व्हाई? बिकॉज द सेल्स ऑफ द स्क्लेरेनकाइमा आर लिग्निफाइड और पेक्टिनाइज्ड, क्योंकि वहां पर क्या होगा, उस सेल की जो सेल वॉल है उनके ऊपर पेक्टिन और लिग्निन आ सकता है। ओके, नेक्स्ट वन अकरेंस। अकरेंस का मतलब ये सेल्स कहां पर प्रेजेंट होगी, ये सेल्स पेरेनकाइमा सेल्स कहां पर प्रेजेंट होगी, इन द सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ द प्लांट। प्लांट का जो न्यू प्लांट है उग रहा है तो उसका जो सॉफ्ट पार्ट्स हैं, या प्लांट का और भी जो बड़ा प्लांट है उसके भी सॉफ्ट पार्ट जो है उनके अंदर भी क्या होगा, ये पेरेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट होगी। कॉलेनकाइमल सेल्स आर प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस। क्या करेगी ये, बिलो द एपिडर्मिस, जो प्लांट की जो एपिडर्मिस है उससे नीचे ये होगी। नेक्स्ट वन
the cells of this tissue found in the harder parts of the plants का जो हार्डर पार्ट है, क्यों? देखिए हम लोग देखते हैं कि अगर कोई प्लांट का पार्ट है वो हार्ड हो गया है तो उसके ऊपर कोई ना कोई चीज एक्यूमुलेट हो जाती है, इस वजह से वो क्या होगा, सूख जाता है, ड्राई हो जाता है और वो सेल्स कैसी हो जाती है, डेड हो जाती है। इस कंडीशन में जो टिश्यू हमारा है स्क्लेरेन्काइमा वो फंक्शन कर रहा है। नेक्स्ट वन, नेचर ऑफ द सेल वॉल, उसके अंदर सेल वॉल कैसी है? सेल वॉल उसकी है फाउंड इन द मेड ऑफ सेलुलोज। पैरेन्काइमा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उसकी जो सेल्स हैं वो कैसी है, लिविंग सेल्स है, वो किसकी बनी हुई, उसकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है, सेल्यूलोज की बनी हुई है। एज वी नो द सेल्यूलोज इज द अबंडेंट सब्सटेंस फाउंड इन द प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट वन, द टिश्यू कॉलनकाइमा, द सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ पैक्टिनाइज सेल वॉल होगी, और पैक्टिनाइज सेल वॉल होने से क्या होगा, उसकी जो स्ट्रक्चर है, सेल वॉल की जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगी, एज अ पिटेड होगी। पिटेड मतलब उसमें उबड़ खाबड़ स्ट्रक्चर होगी। वाई? क्योंकि वहां पर क्या होगा, पैक्टिन जब एक्यूमुलेट होगा तो उसका एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, दैट्स व्हाई इसके अंदर क्या होगा, पिट्स होंगे। ओके, आफ्टर दिस स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू इज आल्सो हैविंग द पिट्स ओवर देयर सेल वॉल बिकॉज देयर सेल वॉल will filled with accumulated with lignin, or lignin will non-uniformly distributed over the surface of cell wall. Okay, I hope you understand. Next we discuss about the functions of parenchyma. What is the functions of parenchyma? ये पहले तो क्या होता है कि सॉफ्ट पार्ट्स में डिवाइड होता है और ये हेल्प करता है किसमें, सॉफ्ट पार्ट्स में ये होगा प्लांट्स के। और फाउंड का फंक्शन क्या होगा, हम लोगों ने देखा 3 टाइप के इसके मॉडिफिकेशंस हैं। तो जो क्लोरेन्काइमा का फंक्शन है दैट इज हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड। नेक्स्ट वन, एरेन्काइमा, what is the function of erenchyma? Erenchyma will provide the buoyancy. Erenchyma provide the buoyancy. buoyancy क्या होता है, किसी भी प्लांट को वाटर के अंदर फ्लोट करने की क्या होती है, कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है। तो ये जो टिश्यू है एरेन्काइमा, उसकी जो सेल्स हैं दे विल हैव the intercellular spaces and these intercellular spaces will filled with the air. उसके अंदर क्या भरी होगी, हवा भरी होगी, इसलिए ये हवा क्या करेगी, उसको ऊपर की तरफ फ्लोट करवाएगी, ना कि उसको श्रिंक करवा देगी। ओके, देन आफ्टर पोसेनकाइमा, इट इज आल्सो द टाइप ऑफ parenchyma and this type of parenchyma will help to remove the waste products of the plant body. I hope you understand this difference of the parenchyma tissue, collenchyma tissue and sclerenchyma tissue. I hope you understood